جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج میرے ساتھ میری اہلیہ شنیلا عمار موجود ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بدنام زمانہ پشاور بی آر ٹی کا افتتاح کر دیا، اور اس بی آر ٹی کو وہ جبکہ اور تمام میٹروز کو ایک زمانے میں وہ جنگلہ بس کہا کرتے تھے۔ جی، جنگلہ بس کہا کرتے تھے، اور خان صاحب کو آج سمجھ بھی آگئی کہ یہ انقلاب کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ آج ان کو یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے انفراسٹرکچر کا بہت کردار ہے، ورنہ وہ کہتے رہتے تھے سڑکیں بنانے سے اور میٹرو بنانے سے قومیں نہیں بنتی۔ بالکل، اور لیکن آج کے پیس میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس بی آر ٹی کا افتتاح کن حالات میں کیا گیا، کیوں کیا گیا، اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کیا کیا تھے۔ سب سے پہلے اس میں بات یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے صحافیوں سے کچھ ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ یہ بی آر ٹی ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، جو نہ اگلی جا سکتی ہے نہ نگلی جا سکتی ہے، ہم کسی طرح اس کا افتتاح کر کے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایکچولی یہ پروجیکٹ تو نا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بڑی لمبی لمبی داستانیں اٹیچ ہے کرپشن کی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ جب پنجاب لاہور میں میٹرو بن رہی تھی، اس کے بعد پنڈی میں بن رہی تھی، تو اسد عمر صاحب کی ایک ٹویٹ بھی تھی کہ جی آپ مجھے 12 ارب دیں تو میں آپ کو میٹرو بنا کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ 35 ارب کی جو بن رہی تھی پنڈی کی بن رہی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جی یہ پشاور میں سٹارٹ کی اور بڑے دعوے کیے کہ جی ہم 6 مہینے میں کمپلیٹ کریں گے۔ میرے خیال میں یہ پرویز اٹک صاحب نے الیکشن کے لیے اس کو ایک ٹول بنایا کہ، اور 6 مہینے کا دعویٰ بھی کر دیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی نامکمل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ پرویز خٹک نے انہیں الیکشن کا بہانہ بنایا تھا اس وقت، تو اب بھی کچھ انہیں انڈیکیشن ہے کہ شاید جلد ہی دوبارہ الیکشن ہو جائے، لیکن اس وقت یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت پشاور بی آر ٹی کے حالات کیا ہیں۔ تو یہ بالکل ایک نامکمل ادھورے پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بسیں تھیں، اب پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال ہے، 1 سال پہلے وہ آ گئی تھیں، وہ دھوپ اور بارش میں کھڑی رہیں، اب وہ چلنے کے قابل ہیں یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ 3 شاپنگ پلازاز بننے تھے، وہ شاپنگ پلازا ابھی تک نہیں تعمیر ہوئے۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ سائیکل ٹریک بننا تھا، وہ سائیکل ٹریک ابھی نہیں بنا۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ 60 کلومیٹر جو فیڈر روڈز بننی تھی وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور بہت سی جگہ پہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جیسے یونیورسٹی روڈ ہے، ہشت نگری ہے، وہاں پہ اس بی آر ٹی کے کنسٹرکشن میں کچھ ایسے فلاز ہیں کہ اوپر سے تو بی آر ٹی گزر جائے گی لیکن نیچے سے عوام کی ٹریفک نہیں گزر سکے گی۔ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں، ایک تو اس کی لاگت جو تھی وہ 3 گنا ہو گئی، جو پہلے 32 ارب کا شاید تھا جی، اور اب یہ 78 ارب میں جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہے، جو ان کی اپنی ایسٹیمیشن ہے، لیکن ڈالر ریٹ کی وجہ سے اب یہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہو رہا ہے، وہی ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب اس کی انکوائری کرنے لگی تھی، تو نیب کو روک دیا گیا کہ جی آپ آن گوئنگ پروجیکٹ کی انکوائری نہیں ہو سکتی۔ پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ جی آپ اس کی انکوائری کریں، تو یہ سپریم کورٹ چلے گئے، سٹے لیا، فی الحال سٹے ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اس کے لیے جو بسیں لے کے آئے تھے اس میں ان کا یہ کہ جو بڑی بسیں ہیں وہ آپ میٹرو کے اوپر چلائیں گے، جو چھوٹی بسیں ہیں وہ آپ استعمال کریں گے لوگوں کو لانے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے مسافر نہیں ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ جی ہمارے ڈیلی 3 لاکھ کے قریب لوگ اس پہ سفر کریں گے، لیکن پشاور کی جتنی آبادی ہے میرا نہیں خیال کہ 3 لاکھ کے قریب، ابھی تک جو ان کا زو کارڈ جو انہوں نے جاری کیا گیا وہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے لے لیا ہے۔ اب ان میں سے کتنے اویل کرتے ہیں اس کارڈ کو یہ اب ہمیں پتہ چلے گا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پہلا ہفتہ تو آپ کا کھڑکی توڑ رش ہوگا، جو ہوتا ہے، جو لاہور میٹرو کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کو کتنا اس کی یوٹیلائز کیا جاتا ہے، نقصان کتنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب پنجاب گورنمنٹ سبسڈیز دیتی تھی میٹرو کے اوپر تو یہ لوگ شور ڈالتے تھے کہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، آپ یہ پیسے کہیں اور بھی لگا سکتے تھے۔ اب خان صاحب آج یہ بات کر رہے تھے کہ جی کم ٹکٹ سے غریب عوام کو ریلیف ملے گا، تو یہ ریلیف جو ہے سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ 1 ہفتے تک پتہ چلے گا، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل صورتحال اس وقت پتہ چلے گی جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ پروجیکٹ ابھی انکمپلیٹ ہے، جو انکوائریاں ہو رہی ہیں وہ پینڈنگ ہیں، جب وہ انکوائریاں مکمل ہوں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اور اے این پی نے بھی اس میں تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے، نیب بھی بڑا کین ہے، اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی بات کی، اسٹے میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں اب دیکھیے یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، ایک
ड्रामे का इफ्तिताह था, इसलिए कि अगर जो मेन स्टेशन है इसका गुलबहार का वो अभी भी उसी तरह गंदा मंदा पड़ा है और इसके जो साइड रोड्स हैं वो कंप्लीट उस तरह नहीं हुई भी। तो ये हैदराबाद के एरिया की भी कुछ चीज़ें अभी जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, और वैसे जो हुकूमती डेडलाइन है वो जून 2021 की है कि हम तब तक कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ख्याल में ये जो आजकल गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है और कुछ हम रूमर्स भी सुनते रहते हैं, तो कुछ जल्दबाजी का इफ्तिताह लग रहा है। अच्छा, इसमें जब हम ये इफ्तिताह क्यों किया गया इसके ऊपर अभी हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन इसमें ना जो बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने आएंगे जब ये मुकम्मल होगी, अगर साफ शफाफ इंक्वायरी हुई और इंसाफ के जो इदारे हैं उन्हें इंसाफ करने दिया गया, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो विजिबल स्कैंडल था वो सरिये का था। इनिशियली जो इसका सरिये का एस्टीमेट था वो 40,000 टन था, लेकिन रिपोर्टेडली अब इसमें 80,000 टन सरिया लगा है। और ये सरिया कहाँ से लिया गया है अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन पीटीआई के एक सेनेटर हैं, उनकी सरिया मिल है और वहाँ से ये सरिया लिया गया है। वैसे जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी भी कंट्रोवर्शियल है। पंजाब में वो कंपनी ब्लैक लिस्ट की गई थी, पहले पंजाब वालों ने मेट्रो दिया, लेकिन फिर उस कंपनी की जो रेपुटेशन थी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, और खैबर पख्तूनख्वा में उसी कंपनी को वो प्रोजेक्ट दे दिया गया। इसमें खबर की बात यह है कि पंजाब में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन इस्लामाबाद के अभी 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट उस कंपनी को दे दिए गए। तो इस्लामाबाद में भी हुकूमत किनकी है? उन्हीं की जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये इफ्तिताह इतनी जल्दी क्यों किया गया। एक तो खान साहब ने अपनी गलती तस्लीम की, उसमें बात यह है कि बहुत अच्छी बात है अगर कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम करे तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि खान साहब ये अपनी गलती भी तस्लीम करें कि इनका धरना गलत था, इनका लॉकडाउन गलत था, इनका सिविल नाफरमानी की कॉल गलत थी, इनके जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश गलत थी, इसमें पीटीवी पे और पार्लियामेंट पे हमले करने का हुक्म गलत था, वो गलतियां भी माने। खान साहब ग्रेजुअली सीखते हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातों पे यू टर्न लेके कहा कि ये हमसे गलत हुआ। तो मुझे कभी उम्मीद है कि एक दिन खान साहब भी नारा लगा रहेंगे वोट को इज्जत दो। जी, वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जिस वजह से ये इफ्तिताह किया गया, आपको पता है कि ये खबर किस वक्त आना शुरू हुई है? जिस वक्त मरियम नवाज़ की पेशी हुई, कारकुन आ गए वहाँ पे, नैब के अफसरान अपने दफ्तरों में चूहों के बिल में घुस गए, और उस वक्त अचानक ये खबर आ गई कि बीआरटी। तो ये बेसिकली इस तरह की कोशिशें नैरेटिव कंट्रोल की होती हैं कि कौम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसी वजह से इतनी जल्दी एक नामुकम्मल और अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह करना पड़ा, क्योंकि सारी डिस्कशन अब मरियम नवाज से हटकर अब बीआरटी पे हो गई है। परवेज खटक साहब के भी तो प्रॉब्लम चलते रहे थे ना, वो खैबर पख्तूनख्वा में उनको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा था और बड़े अनपॉपुलर हो रहे थे, तो मेरे ख्याल में कुछ उनको भी सियासी सहारा मिलेगा जी। परवेज खटक साहब शायद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई और काम तो होता नजर नहीं आ रहा, तो चले एक प्रोजेक्ट पे उनकी तख्ती तो लग ही जाएगी। अभी बिलियन ट्री का भी स्कैंडल निकला। अच्छा, वो जो है ना परवेज खटक साहब का, खान साहब ने आज उनकी बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा मैं अपनी परवेज खटक सही थे, मैं गलत था। ये बुनियादी तौर पे इसकी ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके तहत परवेज खटक को इंडोर्स किया गया, उनकी बहुत तारीफ की गई। जब से बीआरटी शुरू हुआ और जिस अजाब से पेशावर के शहरी गुजर रहे थे, और हम खुद कई दफ़ा पेशावर गए हैं, इस्लामाबाद से पेशावर जाने में 1.5 घंटा लगता था, और पेशावर टोल प्लाजा से पेशावर सदर तक पहुंचने में इतना ही टाइम लग जाता था। तो परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ लोगों का जो एंगर था, परवेज़ खटक साहब पेशावर में दाखिल नहीं हो सकते थे, अपने हलके में नहीं जा सकते थे, अपने वोटर्स में नहीं जा सकते थे। तो ये बुनियादी तौर पर एक दफ़ा फिर उनको मुस्तहकम किया गया है, उनकी थोड़ी सी इज़्ज़त बढ़ाई गई है। इससे एक चीज़ ये भी है ना कि खान साहब ने कहा कि मैं परवेज़ खटक साहब की दूरअंदेशी को सलाम करता हूँ, तो बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्ट तो शहबाज शरीफ का है, तो उन्हीं से आपको याद होगा कि जब परवेज़ खटक वज़ीर आला बने थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उन्होंने असेंबली में तकरीर करके कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को कॉपी करूंगा और मैं पेशावर को लाहौर जैसा बनाऊंगा, क्योंकि लाहौर में जब आप एंटर होते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं, अंडरपास है, फ्लाईज ओवर्स हैं, रोड जिस तरह की हैं, तो मैं इसको पेशावर को, तो उन्होंने कॉपी उधर से किया। तो इनडायरेक्टली खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की जो दूरअंदेशी और बसीरत है उसको आज एक्नॉलेज कर लिया। अच्छा, एक और बात ये है कि
जब हम इस पे बात कर ही रहे हैं कि इस मंसूबे का इतनी जल्दी इफ्तिताह किया, इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तो एक बात है कि बहुत अरसे से और रीसेंट पास से ये बात होना शुरू हो गई है कि जिस तरह ये इस हुकूमत की गवर्नेंस चल रही है, जिस तरह इनकी कारकर्दगी है, जिस तरह ये गरीब की ज़िंदगी इन्होंने तंग की है, ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। खान साहब ने खुद कई दफ़ा कहा कि बस अब हमारे पास 6 माह की मोहलत है। अब अगर वो समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो वो अपने जिन प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है उसके ऊपर अपनी तख्ती ज़रूर लगाना चाहते हैं, लेकिन ये एक अधूरे नाकाम मंसूबे के ऊपर अपनी तख्ती लगाई है जो हमेशा पेशावर के शहरियों को खौफ की तरह डराते रहेगा, उनके लिए सुहाने रूह बना रहेगा। इसलिए कि अगर ये BRT पे बसें चल भी गई तो नीचे जो आवाम का हाल होगा वो बहुत तकलीफ दे होगा। वैसे पेशावर जो है, आपको पता है एक छोटा सा इलाका, आपकी पूरी एक रोड आप शहर से स्टार्ट हो हयाताबाद तक एक ही जा रही होती है। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि BRT जैसे मंसूबों की ज़रूरत नहीं थी। मैं तनकीद नहीं करती, लेकिन वहाँ पे एक अच्छे आप ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना सकते थे। आप अच्छी बसें लाते, आप रोड्स जो थे उनको खुला करते, अच्छी रोड्स बनाते, तो वो उस आवाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है BRT से, क्योंकि हर शहर की अपनी डायनेमिक्स होती है, उनके हालात मुख्तलिफ होते हैं। लाहौर के अंदर सिर्फ मेट्रो नहीं बनी है, लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन भी बनी है, जिनको फ़िलहाल फिर अब ये रोक के बैठे हुए हैं और उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और मैं हमें कुछ अरसे के बाद जब ये ऑरेंज ट्रेन की भी तारीफ़ें करते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पे दूसरी बसेस भी चल रही हैं, वहाँ पे अंडर पासेस भी बने हैं, फ्लाई ओवर्स भी बने हुए हैं। आप इन चीज़ों को करते BRT की बजाय वहाँ, क्योंकि आपका वो एक छोटा शहर है, लाहौर से अगर उसको कंपेयर किया जाए, आप सीट्स देख लें, आपके पेशावर की 4 सीट्स है, वहाँ से 14 सीट्स NA की, तो उसको बड़ी अच्छे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ मैनेज किया जा सकता था। आपने ये BRT जैसा मंसूबा स्टार्ट किया जो नामुकम्मल भी है, जिस पे लागत भी 3 गुना हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम ने भी इतना सफ़र किया। अब हमने आगे देखना है कि इस मंसूबे के ज़रिए आवाम को फ़ायदा कितना होता है, आपको कितना फ़ायदा होता है, कितने मुसाफिर इसके ज़रिए सफ़र करते हैं और ये आगे जाके कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा, इसमें बस अब इस बात को ख़त्म करते हैं। और मेरे ख्याल में खान साहब की आज की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो जिस चीज़ को जंगला बस सर्विस कहते थे, जिस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, जिस चीज़ की तज़हीक करते थे पंजाब की, उस चीज़ का उन्होंने ख़ुद इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट ऐसा है और जिस तरह ये मुकम्मल हुआ है और जो इसमें टेक्निकल खामियां हैं, जो कंस्ट्रक्शन फ्लॉ है, इसके ऊपर मुद्दतों तक जो है ना पेशावर के अवाम और पेशावर की जो तारीख़ है वो इसके ऊपर कह कहे लगाती रहेगी, इनके ऊपर तंज के नश्तर बखेरती रहेगी। इसलिए कि ये मंसूबा, आप यकीन रखिए, इसमें सिर्फ फीता काटा गया है। ये इस मंसूबे के बहुत सारे पार्ट्स अभी अधूरे हैं और जब तक कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं होता उसके इफ्तिताह का हक़ नहीं होता। ये पैनिक में किया गया है, घबराहट में किया गया है, खौफ में किया गया है और नैरेटिव को तब्दील करने के लिए किया गया है। और इस जिस तरह इसको इफ्तिताह किया गया है, हमें बहुत जल्दी नज़र आ रहा है कि ये तो KPK की बात है, हमें वफाकी सतह पे भी मंजरनामे में कोई तब्दीली नज़र आ रही है। तो अभी तक इतना ही, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।